Hi everyone, welcome to MBA Pathshala. Hope you're doing well. So this is the next video in the Best of CAT LRDA practice series, right? So today we are doing a logical DI set from previous years, right? So let's proceed. Acha, before we move on, we have an announcement to make. So we are going to make big announcements on the 12th of this month, right? So please stay tuned. 12th को बहुत सारे हम announcements करने वाले हैं with respect to CAT 24. So if you are someone who's preparing for CAT 24 या फिर तुम्हारा कोई भी friend 24 के लिए prepare कर रहा है, right? And बाकी major exams के लिए भी obviously everything is included. So we have multiple announcements to make on the 12th. ठीक है, एक हमारा पूरा इवेंट होने वाला है. उस इवेंट में बहुत सारे चीज़ें होने वाली हैं जो तुम्हारे काम की होने वाली है. ठीक है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड एवरीथिंग. ठीक है, अभी हम बहुत ज़्यादा उसको रिवील नहीं करना चाहते हैं, बट वी हैव समथिंग बिग प्लान फॉर द 12th, राइट? सो प्लीज स्टे ट्यून्ड. चलो स्टार्ट करते हैं विद द सेट फॉर टुडे. सो दिस इज अ चेतन एंड माइकल सेट, अ वेरी फेमस सेट. ठीक है, कैट का प्रीवियस ईयर का है. सो अगेन द स्टैंडर्ड प्रैक्टिस शुड बी, आप एक बार यहाँ पे स्क्रीन को पॉज करो, ट्राई द सेट योरसेल्फ एंड देन proceed on with the rest of the solution. Right, so I hope you have read the set, I hope you have tried the set. बना नहीं बना कोई इशू नहीं है, समझने की कोशिश करते हैं what is the concept behind this particular kind of set और ऐसे सेट को उसको कैसे हम सॉल्व करते हैं. ठीक है, now let's start reading this. So let's take the main pieces of information. तो यहाँ पे क्या दिया हुआ था, two traders Chetan and Michael, they were involved in the buying and selling of MCS shares over 5 trading days. At the beginning of the first day, the MCS share were priced at ₹100. तो initially जो MCS share है उसकी प्राइस क्या है, 100 है initial before everything else. ठीक है, while at the end of the 5th day it was priced at 110. तो first day begin होने से पहले की प्राइस गिवन है जो initial हम बोल रहे हैं, that is ₹100, and 5th day के end में the price ends up at 110, that is 10 more. At the end of each day, the MCS share price either went up by 10 or else it came down by 10. Now this is simple. हर दिन जो भी MCS शेयर की प्राइस का फ्लक्चुएशन है, that fluctuation is either of a +10 or a -10. For example, at the beginning of the first day, for example, if the price was 100, let's say, right? So the next day, it can either be 110, that is a 10 increase, or it could have been a 90, that is a decrease of 10. Now, moving from the first day to the second day, the changes will be based on the first day. फॉर एग्जाम्पल, अगर फर्स्ट डे के एंड में 110 पे क्लोज हुआ, सो सेकेंड डे पे प्राइस 120 भी हो सकती है और 110 से 10 कम, दैट इज वापस 100 भी आ सकता है. एंड सिमिलरली अगर फर्स्ट डे पे आपकी प्राइस 90 हुई होती, तो 90 के रिस्पेक्ट में सेकंड डे के एंड पे आपकी जो प्राइस होगी 90 से या तो 10 ज्यादा 100 हुई होगी, या तो 90 से लेस 10 भी हो सकता है आपका, दैट इज 80 भी हो सकता है. सो दीज आर द काइंड ऑफ सिनेरियोस पॉसिबल. सो ऑब्वियसली पिछले नंबर पे डिपेंडेंट है व्हाट इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट नंबर, राइट? सो ये हमें क्लैरिटी यहां से स्टार्टिंग से होनी चाहिए. Both Chetan and Michael took buying and selling decision at the end of each trading day. The beginning price of MCS share on a given day was the same as the ending price on the previous day. ये तो सिंपल डेटा है, मतलब फर्स्ट डे पे जिस भी प्राइस पे आपका वो शेयर क्लोज होगा, सेकेंड डे के स्टार्टिंग में बिफोर द ट्रेडिंग हैपेंस ऑन द सेकेंड डे, द प्राइस विल बी द सेम एज इट क्लोज ऑन द प्रीवियस डे. ऐसे ही होता है आपका नॉर्मली, राइट? Chetan and Michael started with the same number of shares, ये important है, an amount of cash and had enough of both. Right, enough of both से ज़्यादा हमारे लिए important ये है कि both Chetan and Michael initially had the same amount of shares of MCS and also they had the same amount of cash, right? दोनों का initial cash balance भी same था. Below are some additional facts about how Chetan and Michael traded over the 5 trading days. Now, before I move on to this one, पहले हम यहाँ पे क्या करना चाहेंगे, इस सेट को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, वी हैव टू थिंक कि 5 चेंजेस के बाद 100 जो है वो 110 कैसे पहुंचेगा. तो दिस इज वेरी बेसिक, दिस इज वेरी सिंपल, थोड़ा कॉमन सेंस भी है. अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि इनिशियली 100 है, राइट, और फाइनली आपका 110 पहुंचा है 5 चेंजेस के बाद, तो चेंजेस आर आइदर ऑफ +10 और -10. 5 चेंजेस के बाद +10 आपका हुआ है, ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि नेट चेंज आपका +10 होने के लिए देयर हैव टू बी 3 इंक्रीजेस ऑफ 10 एंड 2 डिक्रीजेस ऑफ 10. ये 3 and 2 के कॉम्बिनेशन में डिवाइड होना चाहिए. अगर इसके अलावा तुम कोई भी कॉम्बिनेशन बनाओगे +10 और -10 का, तो फाइनली +10 नहीं बचेगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू से कि 2 बार इंक्रीज हुआ और 3 बार डिक्रीज हुआ, तो 2 बार इंक्रीज करोगे 10 और 10 का इंक्रीज होगा.
अगर 2 बार डिक्रीज करो, 3 बार फिर डिक्रीज करोगे तो -10 -10 -10, तो 2 + 10 को 2 -10 बैलेंस कर देगा, लेकिन फिर एक -10 हो जाएगा ना, तो नेट आपका प्राइस जो होगा 100 से अगर स्टार्ट हुआ तो फाइनली कहां पे दिखेगा आपका 90 पे दिखेगा। ऑल्सो वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, 100 से 90 दिखेगा बट इसमें ऑर्डर कुछ भी हो सकता था, फाइनली 90 पे दिखेगा, ठीक है। अब वो जो दो आप अभी जो मैंने एग्जांपल दिया उसमें अगर आप 2 इंक्रीजेस करोगे तो जरूरी नहीं है कि वो फर्स्ट और सेकंड डे पे ही लगातार इंक्रीज हो जाए, हो सकता है फर्स्ट डे पे इंक्रीज हुआ और लगातार 3 दिन डिक्रीज हुआ और फाइनली आपका एक इंक्रीज हुआ, देन ऑल्सो विल अल्टीमेटली एंड अप एट अ 90 प्राइस, राइट। सो ये सिचुएशन है हमारी। सो फर्स्ट थिंग जो हमने यहाँ पे कंक्लूड करी है वो ये करी है कि अगर 100 से 110 पे फाइनली नेट चेंज अगर +10 का आना है और 5 चेंजेस होने चाहिए, तो 5 में 3 चेंजेस हमारे +10 के होने चाहिए और 2 चेंजेस तुम्हारे -10 के होने चाहिए, राइट। 3 बार इंक्रीज, 2 बार हमारा डिक्रीज। नाउ यूजिंग दिस आई विल फर्स्ट गो अहेड एंड लुक for how many possibilities are there, how many possible combinations of the price on the 5 days are possible such that initial 100 से start करके we end up at 110। so simple है, अगर PNC तुम्हें आती है तो तुम 5C2 का imagination करना start कर सकते हो, नहीं PNC आती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, you can do this by brute force, manually कर सकते हो, ठीक है। so let's start। 5 प्लेसेस हैं, 1 2 3 4 5, 3 बार मेरे को प्लस लिखना है और 2 बार मेरे को माइनस लिखना है। पहले तो मैं प्लस माइनस लिख लूं और फिर मैं प्राइसेस लिखना स्टार्ट करूंगा, ठीक है, जल्दी हो जाएगा। सो 3 बार प्लस, लेट्स से क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, सो प्लस 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 2 बार माइनस, फिर हमारा प्लस 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 2 बार माइनस, देन प्लस 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 2 बार माइनस, देन इसके बाद प्लस 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 2 बार माइनस, देन वी हैव प्लस 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 2 बार माइनस, एंड देन वी हैव अ प्लस, ये दोनों हो चुका है, और इसके बाद हमारा प्लस एंड प्लस और 2 बार माइनस, ठीक है। ये 6 कॉम्बिनेशन बने। इसके बाद फर्स्ट वाले को फिक्स करके सारे कॉम्बिनेशन तुमने बना लिए, अब सेकंड वाले पे प्लस फिक्स करते हैं, तो इसके साथ प्लस 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 वुड बी वन पॉसिबल कॉम्बिनेशन, प्लस 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 वुड बी अनदर कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब यहां पे प्लस प्लस और प्लस दोनों माइनस वुड बी द थर्ड कॉम्बिनेशन, एंड फाइनली यहां पे प्लस फिक्स करके भी सारे कॉम्बिनेशन तुमने बना लिए, तो फाइनली अब ये प्लस भी खत्म होके ये तीनों प्लस जब आएगा तो हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट कॉम्बिनेशन बनेगा, राइट। सो दीज आर द 10 पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ द 3 इंक्रीजेस एंड 2 डिक्रीजेस ओवर द 5 ट्रेडिंग डेज, ठीक है। सो टेक योर टाइम एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। ये हमारे सारे के सारे जितने भी हमने कॉम्बिनेशन बनाए हैं, इतने ही पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं ऑफ द शेयर प्राइसेस ऑन द 5 डेज। नाउ द नेक्स्ट पार्ट व्हाट आई हैव टू डू इन दिस, पहले तो मैं प्राइसेस लिखने में इंटरेस्टेड बिकॉज आई एम मोर कंसर्न अबाउट द प्राइसेस, क्योंकि कैलकुलेशन वगैरह क्वेश्चंस में उसकी होनी है। सो कुछ नहीं है, हर केस में इनिशियल प्राइस तो मेरी 100 ही है, बस इस 100 के रिस्पेक्ट में एक तरीके से आप वो कंडीशन फॉलो करते जाओ उसी ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में प्लस माइनस लिखा है। अल्टीमेटली आपका 5th डे पे आपको 110 मिलेगा, उसमें हम हमारी टेंशन नहीं है, उसमें हमें कोई लॉजिक लगाना ही नहीं है, बस हमें कैलकुलेशन करनी है। सो 100 से प्लस करा, 110 प्लस 120 प्लस 130, 2 बार माइनस तो 120 और 110, देन 2 बार प्लस 100 से 110 120, एक बार माइनस 110, फिर प्लस हुआ 120 और फिर माइनस हो गया, दैट इज 110। देन यहाँ पे लगा था 2 बार प्लस 110 120 और 2 बार माइनस 110 100 एंड फाइनली 110। फिर यहाँ पे प्लस हुआ 110, माइनस हुआ 100, प्लस हुआ 2 बार प्लस, तो 110 120, एक बार माइनस हुआ 110। देन यहाँ पे प्लस एंड माइनस, तो यहाँ पे आपका 110, फिर माइनस हुआ 100, फिर प्लस हुआ 110, फिर माइनस हुआ 100 और फाइनली 110। फिर यहाँ पे प्लस हुआ दैट इज 110, फिर सब्ट्रैक्ट हुआ 100 आया, फिर से माइनस हुआ दैट इज 90 और फिर 2 बार इंक्रीज हुआ 100 एंड 110। फिर यहाँ पे माइनस हुआ दैट इज सीधा 90 पहुंच गया 100 से, फिर 3 बार इंक्रीजेस है, सो 100 110 120 एंड देन एक का डिक्रीज आ गया दैट इज 110, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन फिर माइनस हुआ दैट इज 90, फिर 2 बार प्लस दैट इज 100 110, माइनस के साथ फिर 90 और फाइनली 100, सॉरी यहाँ पे हमारा 100 के बाद, सॉरी दिस वुड बी 110 से डिक्रीज हुआ, राइट, तो दिस वुड बी 100 एंड यहाँ पे वापस से 110। देन यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हुआ, माइनस हुआ 90, फिर प्लस हुआ दैट इज 100, फिर माइनस हुआ दैट इज 90, फिर 2 बार प्लस हो गया तो 100 से 110। एंड द फाइनल केस
2 बार माइनस हुआ तो 90 पहुंचेगा और फिर 80 पहुंचेगा। ये 80 मैं नोटिस करता हूं, ये पहली बार हमारा इस पूरे टेबल में कहीं ना कहीं 80 आया है। और 3 बार इंक्रीजेस होंगे, सो 90 से फिर 100 और फिर फाइनली 110 पे पहुंचेगा, राइट। सो दैट इज द सिनेरियो व्हाट वी हैव टिल नाउ। यहां तक सबको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। नाउ ये तो हो गई हमारी, मतलब अगर 100 से स्टार्ट करके 5th डे के एंड पे 110 प्राइस पे पहुंचना है, सो व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ दीज प्राइसेस ऑन ओवर द 5 डेज। ये तो वो पार्ट हो गया। नेक्स्ट हमारा ये पार्ट इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू चेतन एंड माइकल्स ट्रेडिंग डिसीजंस, मतलब बाइंग एंड सेलिंग डिसीजन वो इन प्राइसेस पे लेने वाला है कैसे। ईच डे, लेट्स राइट दिस डाउन, राइट। सो ईच डे इफ द प्राइस वेंट अप, तो चेतन के केस में अगर प्राइस ऊपर गई का मतलब कुछ भी हो सकता है, 90 से 100 जाए, चाहे 100 से 110 जाए, 110 से 120, कुछ भी करे, राइट। अगर प्राइस इंक्रीज हुई है, चेतन सोल्ड, तो चेतन क्या करता है, सेल करता है 10 shares of MCS at the closing price. On the other hand, each day if the price went down, अगर प्राइस तुम्हारी नीचे आई तो वो क्या कर लेता है, he bought 10 shares at the closing price. तो बाइंग एंड सेलिंग हमेशा वो 10 shares की कर रहा है, so that is simple. Now चेतन के लिए नोटिस कर रहे हैं तो वो सिंपल है, उसका कंडीशन वेरी सिंपल। अगर प्राइस ऊपर गई तो सेल कर देगा, अगर प्राइस नीचे गई तो सीधा सीधा क्या कर लेगा, बाई कर लेगा, चाहे कोई भी प्राइस हो। नाउ बिफोर मूविंग ऑन टू द माइकल वाला पार्ट, चेतन वाले पार्ट पे अगर हम थोड़ा सा और यहाँ पे बातें कर लें, अगर हम और डिस्कस कर लें, तो चीजें और सिंपल हो जाएंगी फ्रॉम द ऑनसेट। क्या अगर मैं नोटिस करूं तो ये जो हमने टेबल बनाई, इसमें हमने स्टार्टिंग में ही एस्टैब्लिश कर लिया ना फैक्ट कि ओवरऑल इन 5 दिन में 3 बार आपकी प्राइसेस बढ़ेंगी, 2 बार आपकी प्राइसेस क्या होंगी, डिक्रीज होंगी, राइट। कीप दिस इन माइंड। ये स्टार्टिंग से हमने बोल रखा है कि आप कोई भी सिनेरियो देखोगे, ओवरऑल तुम्हारा क्या होगा, 3 बार तुम्हारा प्राइसेस क्या होगा, इंक्रीज होगा, और 2 बार प्राइस क्या होगा तुम्हारा यहां पे, डिक्रीज होगा। बिकॉज चेतन का सिर्फ इंक्रीज और डिक्रीज से मतलब है, सो वी कैन गो एड एंड फाइनली कंक्लूड कि ओवरऑल कोई सा भी सिनेरियो हो, ओवर द 5 डेज चेतन जो है 3 बार सेल करेगा और 2 बार क्या करेगा, बाई करेगा। बिकॉज 3 बार प्राइस बढ़ा है तो 3 बार सेल करेगा और 2 बार क्या करेगा, बाई करेगा। नाउ इससे ना 2 पार्ट हम यहां से कंक्लूड कर लेंगे। पहला पार्ट बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ शेयर्स, क्योंकि ये सब क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है, हम क्वेश्चन में भी डिस्कस कर सकते थे, मैं आपको पहले बता दे रहा हूं। तो मूविंग ऑन टू द क्वेश्चंस, फिर वो पार्ट हम बस रिकॉल करके इजीली उसको प्लग इन कर लेंगे। पहला पार्ट जो इंपॉर्टेंट है, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ शेयर्स। नाउ इनिशियली इन दोनों के पास सेम नंबर ऑफ शेयर्स थे, ये बोला है। अब हमें नहीं पता कि इनिशियली चेतन के पास कितना शेयर था, कोई भी रहा हो, लेट्स से एक्स अमाउंट ऑफ शेयर्स रहा हो। बिकॉज ये 3 दिन शेयर सेल कर रहा है और 2 दिन शेयर बाई कर रहा है, तो हर दिन जब भी वो सेल या बाई करता है तो 10 शेयर्स का बाई सेल करता है ना। तो जब वो 3 दिन सेल करेगा तो वो अपने लाइक पोर्टफोलियो से एक तरीके से 3 दिन 10 शेयर सेल कर देगा, ओवरऑल नंबर ऑफ शेयर 30 डिक्रीज हो जाएगा इनिशियल के रिस्पेक्ट में, और फाइनली 2 दिन वो क्या करेगा, बाई करेगा। ठीक है, जब वो 30 सेल कर दिया और 20 शेयर्स बाई कर लिया, 10 + 10 बाई करा, तो नेट उसका नंबर ऑफ शेयर्स कितने से डिक्रीज होगा, 10 शेयर से। तो प्लीज रिमेंबर दिस नंबर कि ओवरऑल चेतन का जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है वो 10 से डिक्रीज होगा विद रिस्पेक्ट टू द इनिशियल सिनेरियो, राइट। दैट पार्ट इज क्लियर। ऑल्सो इफ यू टेक अ लुक एट एनी ऑफ द पॉसिबल केसेस, मैं एक केस एक्सप्लेन करूंगा, बट आई विल गो एड एंड से कि दिस विल बी वैलिड फॉर ऑल द केसेस। क्या अगर मैं चेतन का ओवरऑल कैश का बैलेंस नोट करूं, अब ये कैश बैलेंस बेसिकली है क्या, देखो यार, इनिशियली इनके पास कुछ अमाउंट ऑफ कैश रहा होगा 5 दिन से पहले। नाउ कैश जनरेशन कैसे होगा, सिंपल। अब याद रखना, अगर तुम ना स्टॉक सेल करते हो तो तुम्हारे पास कैश आता है, कैश बैलेंस बढ़ता है, सेल करने से बढ़ जाएगा, राइट। और अगर तुम क्या करते हो, स्टॉक को बाई करते हो, तो तुम्हें कैश से बाई करना पड़ेगा ना, तो तुम्हारा कैश का बैलेंस कम होगा। तो अगर मैं नोटिस करूं चेतन के लिए, अब तुम कोई सा भी केस उठा सकते हो जो तुम्हारा मन करे, एवरी टाइम इट विल बी कांस्टेंट। जैसे चेतन के लिए अगर मैं नोटिस करूं, यहां इसने सेल करा होगा, जब सेल करा होगा 10 शेयर, तो 1100 1200 1300 कैश मिला होगा। 1100 1200 1300 ओवरऑल मिला के कितना बन गया आपका, 3600 कैश आपका प्लस में दिखेगा। और वो जो 2 दिन है, उन दोनों दिन प्राइसेस डिक्रीज हुई है ना,
तो वो क्या करेगा, उसी कैश से आपका स्टॉक्स को बाई करेगा। बाई करने के लिए उसको यहाँ 1200 देना पड़ेगा बिकॉज इज बाइंग 10 शेयर्स, और यहाँ पे 1100 पे करना पड़ेगा बिकॉज इज अगेन बाइंग 10 शेयर्स। तो 2300 उसको वापस देना पड़ेगा। तो 36 में से 2300 क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट होके बैलेंस उसका कितना बचेगा, 1300। नाउ इफ यू गो ahead एंड कैलकुलेट दिस फ्रॉम एनी ऑफ द 10 केसेस, ठीक है, मैं नहीं कर रहा, मैं आपके ऊपर वो छोड़ रहा हूं, आप किसी भी केस को उठा के अगर उसके कैश बैलेंस का नेट कैलकुलेशन देखोगे तो आप हमेशा 1300 वाली वैल्यू पे ही पहुंचोगे। तो चेतन के लिए इट इज फिक्स फ्रॉम द वर्ड गो कि चेतन का पहला तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इनिशियल के रिस्पेक्ट में 10 कम होगा, एंड ऑल्सो कैश बैलेंस पे क्या फर्क पड़ेगा चेतन का, कि चेतन का इनिशियल के रिस्पेक्ट में हमेशा कैश जो होगा 5th डे के एंड में 1300 एक्स्ट्रा होगा, राइट। सो दीज आर द टू थिंग्स आई वांट यू टू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली फ्रॉम द इनिशियल पार्ट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। ये हो गया हमारा चेतन का पूरा डिस्कशन। अब माइकल पे आते हैं। माइकल का जो हमारा बाइंग एंड सेलिंग का कंडीशन है दैट इज नॉट फिक्स्ड, राइट। वो हमारा क्या है, मतलब फिक्स्ड है बट वो हमारे वैल्यूज पे डिपेंडेंट है, ठीक है। हर केस में वो सेम सिनेरियो रिपीट नहीं होगा। क्या दिया है पहले पढ़ते हैं। सो इफ ऑन एनी डे द क्लोजिंग प्राइस वाज अबव 110, मतलब माइकल के केस में जब भी प्राइस 110 से ऊपर जाएगी, दैट इज 120 में बी या 130 बिकॉज दैट इज द मैक्सिमम वी कैन सी, 110 से जब भी प्राइस मेरी ऊपर जाएगी तब वो क्या करेगा, सेल करेगा। एंड सिमिलरली वाइल इफ इट वाज बिलो 90, जब भी प्राइस मेरी 90 से नीचे जाएगी तब क्या करेगा, ही विल बाई 10 शेयर्स। तो यहां क्या करेगा, ये बाई। तो 90 से नीचे हमारा एक्चुअली में एक ही वैल्यू है दैट इज 80। तो ये नोटिस करना, और कहीं हमारे 80 है ही नहीं। तो अगर मैं बोलूं कभी भी किसी भी क्वेश्चन में अगर ये पार्ट आ जाए कि माइकल बाई कर रहा है तो वो लास्ट वाले केस को ही डिफाइन कर रहा होगा, ठीक है। नाउ वी डोंट नीड टू मेक सेपरेट केसेस फॉर ईच क्वेश्चन, वो सारे केसेस हमारे पास प्रेजेंट है। बस जितनी कंडीशन अभी मैंने पूरी डिस्कस करी है इस पूरे पार्ट को हम यहाँ पे समझ के चलेंगे और इन्हीं से हमारा क्या निकलने वाला है, आंसर निकलने वाला है। नाउ this initial discussion in hand, let's go ahead to the problems। अब प्रॉब्लम हमारे इतने ज्यादा डिफिकल्ट नहीं रह गए बिकॉज हमने कंडीशन बहुत क्लियरली डिस्कस कर रखा है एंड समझ रखा है, ठीक है। नाउ लेट्स गो टू द फर्स्ट प्रॉब्लम। If Chetan sold 10 shares of MCS on 3 consecutive days, while Michael sold 10 shares only once during the 5 days, what is the price of the MCS at the end of day 3? Now, दोनों की कंडीशन मीट करनी चाहिए, वो वाले केस से हमें MCS शेयर का प्राइस बताना है एट द एंड ऑफ डे 3, ठीक है। दोनों केसेस का कॉमन देखेंगे, ठीक। कौन से केसेस हैं जब दोनों सिनेरियो हमारे फिट हो जाए। तो चेतन सोल्ड 10 शेयर्स ऑफ एमसीएस, वो तो हमें पता ही है, ऑन 3 कंसेक्यूटिव डेज। तो 3 बार तुम्हारा प्राइस इंक्रीज होना चाहिए, वो भी कंसेक्यूटिव होना चाहिए, तभी हमारा वो फर्स्ट कंडीशन मीट होगा। तो कहां से, कौन से सिनेरियोज हैं जब हमारा जो प्राइस इंक्रीज हो रहा है 3 बार, वो तीनों कंसेक्यूटिव इंक्रीज हो रहे हैं लगातार। सो दैट इज टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट केस। फिर हमारा और कौन सा केस है, ये वाला केस है, 3 लगातार प्लस आ रहे हैं, और ये लास्ट वाले केस की बात कर रहा है। तो ये तीनों सिनेरियो में हम बोल सकते हैं कि चेतन सोल्ड अपना 10 शेयर्स ऑन 3 कंसेक्यूटिव डेज, बट वी हैव टू टेक केयर ऑफ व्हाट द कंडीशन फॉर माइकल ऑल्सो। तो माइकल वाली कंडीशन देखें, माइकल सोल्ड 10 शेयर्स ओनली वंस ड्यूरिंग द 5 डेज। तो माइकल सेल कब करता है, जब प्राइस 110 से ऊपर जाती है। तो 110 से ऊपर मतलब एक ही बार अगर माइकल को सेल करना है तो 120 या 130 एग्जैक्टली तुम्हारा उन 5 दिन में एक बार देखना चाहिए। वो केसेस देखेंगे तो हम इन्हीं में से देखेंगे क्योंकि दोनों की कंडीशन को मीट कराना है। तो इसमें नोटिस करो तो 120 130 120, इसमें तो 3 बार माइकल सेल कर देगा, तो वो नहीं चाहिए हमें। इसमें नोटिस करोगे तो 120 से एक बार है, सो दिस इज गुड। फाइनल केस अगर हम देखेंगे तो यहां पे 120 एक भी बार नहीं है ना, एक बार तो होना चाहिए ना, क्योंकि एग्जैक्टली एक बार सेल करना है उसको। तो ये भी केस एलिमिनेट हो जाएगा। सो वी आर गोइंग टू आंसर फ्रॉम दिस केस। एंड इसमें पूछा क्या था, व्हाट वाज द प्राइस ऑफ द एमसीएस एट द एंड ऑफ डे 3। सो डे 3 के एंड में प्राइस क्या है, सॉरी डे 3 के एंड में द प्राइस इज 110। सो दैट इज द आंसर टू द फर्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट, हर क्वेश्चन में बेसिकली देखो यही है, हर क्वेश्चन में तुम्हें अलग अलग केस पे जाना पड़ेगा, बट वो केस पिकअप तुम्हें करने आना चाहिए कि कौन सा केस पिक करना है बेस्ड ऑन दैट कंडीशन। सेकंड, इफ चेतन एंडेड अप विद 1300 मोर कैश देन माइकल एट द एंड ऑफ डे 5। अब देखो यही चीज मैंने आपको समझाई थी कि इनिशियल और अगर मैं फाइनल की बात करूं चेतन एंड माइकल की, ठीक है। अब एक चीज हमने थोड़ी देर पहले समझा था कि चेतन और माइकल के पास तो इनिशियल कैश सेम है,
ठीक है, एक्स एन एक्स है। नाउ चेतन के पास मैंने बड़ी क्लियरली आपको समझाया था कि फाइनल उसका कैश जो बैलेंस होगा वो कितने से बढ़ेगा, 1300 से बढ़ेगा। तो अगर उसका इनिशियल एक्स था तो इसका फाइनल कैश कितना बनेगा, एक्स प्लस 1300। नाउ दिस क्वेश्चन इज सेइंग इफ चेतन एंडेड अप विद 1300 मोर कैश देन माइकल एट द एंड ऑफ डे 5, तो चेतन जो है माइकल के रिस्पेक्ट में 1300 ज्यादा है और इसका एक्स प्लस 1300 है, तो कैन आई नॉट से कि माइकल का फाइनल कैश बैलेंस विल स्टे एट एक्स रुपीज, एक्स रुपीज ही रहना पड़ेगा, तभी तो 1300 का डिफरेंस बनेगा। बिकॉज माइकल का इनिशियल और फाइनल सेम है, तो आई कैन गो एड एंड से कि आई एम एक्चुअली लुकिंग फॉर सच केसेस जहां पे माइकल का कोई ट्रांजेक्शन हुआ ही नहीं, बिकॉज उसका कैश का बैलेंस चेंज नहीं हो रहा है। अगर उसने कोई ट्रांजेक्शन किए होते ना, कैश का बैलेंस डेफिनेटली चेंज हुआ होता, बिकॉज उसका कैश का बैलेंस इनिशियल और फाइनल में चेंज हुआ ही नहीं है, एंड हेंस आई एम एक्चुअली लुकिंग फॉर केसेस जिसमें ना ही प्राइस कभी 110 से ऊपर जाए, ना ही प्राइस कभी भी 90 से नीचे जाए। हम सिर्फ उन केसेस पे फोकस करने वाले हैं। तो फर्स्ट नहीं होगा, 120 है, 120 है, 120 है, 120, पहले 4 केसेस तो गए। दिस इज वन गुड केस, इसमें प्राइस आपकी बेसिकली 90 से 110 की रेंज में है। यहां पे दिस इज ऑल्सो गुड फॉर अस, यहां नहीं लेंगे, 120 चला गया है। दिस अगेन इज गुड फॉर अस, दिस ऑल्सो इज गुड फॉर अस। तो 4 पॉसिबल केसेस हैं जो कंडीशन मीट कर रहे हैं। लास्ट वाला नहीं होगा बिकॉज उसमें 80 जा रहा है, उस दिन तो वो बाई करता है। तो ये चारों केसेस में फिर आपका पूछा क्या है, व्हाट वाज द प्राइस ऑफ द एमसी शेयर एट द एंड ऑफ डे 4। नाउ यूनिक आना चाहिए, 4 केसेस हैं, 100, 100, 100 एंड 100। सो इररेस्पेक्टिव ऑफ द केस, द फाइनल प्राइस ऑन द 4th डे इज ₹100, राइट। सो वही था, अगर हम इनिशियल कंडीशन समझ जाओगे तो फिर तो ज्यादा कोई डिफिकल्टी आपकी है नहीं सच, राइट। Let's move to the third problem. If Michael ended up with 20 more shares at the end of day 5, same चीज, अभी shares की बात कर रहा है, तो let's say again do initial, final, चेतन, माइकल, दोनों के पास इनिशियली क्वेश्चन में बोल रखा था ना, इनिशियल पैराग्राफ में, चेतन माइकल हैड द सेम नंबर ऑफ शेयर्स। सो लेट्स से दोनों के पास एक्स अमाउंट ऑफ शेयर्स थे। नाउ इसमें क्या बोल रहा है, माइकल एंडेड अप विद 20 मोर शेयर्स देन चेतन। नाउ चेतन का अगेन फिक्स्ड है डेटा, माइकल का नहीं होता है। चेतन का तो फिक्स है ना, इनिशियल डिस्कशन में बोला था कि चेतन के पास इनिशियल से 10 कम हो जाएंगे शेयर्स, तो अगर इसके पास x शेयर्स थे तो इसके पास x माइनस 10 होगा। अगेन 10 कम क्यों था, लेट्स अगेन रिकॉल, बिकॉज 3 बार सेल करता है, 2 बार बाई करता है। 3 बार सेल करेगा तो 30 सेल कर देगा और 20 बाई करेगा, तो भी 10 कम रह जाएगा ना। सो x माइनस 10। नाउ सिंपल बेसिक अरिथमेटिक समझ के देखना, माइकल का 20 ज्यादा होना चाहिए चेतन से एट द एंड ऑफ डे 5, तो इसका हम क्या लिखेंगे कि इसका और इसका डिफरेंस 20 का आ जाए, सिंपल है, x प्लस 10, राइट। सो दैट इज द केस एंड सिंपल, माइकल का बिकॉज इनिशियल से 10 ज्यादा है शेयर्स, तो 10 ज्यादा कैसे आएगा, बाई करके आएगा। एंड नोटिस करो इस टेबल को, अगर तुमने ध्यान से देख रखा है तो हमने 2 बार बोल दिया था कि माइकल का बाई सिर्फ इसी केस में हो सकता है, बिकॉज बाई की कंडीशन क्या है, प्राइस 90 से नीचे जाए, और प्राइस 90 से नीचे इन ऑल दीज 10 केसेस सिर्फ एक ही बार हुई है, यहाँ पे 80, तो यहाँ पे जाके एक्चुअली में बाई करेगा। सो हमें लास्ट वाले केस से आंसर करना है, पूछा क्या है, व्हाट वाज द प्राइस ऑफ द शेयर एट द एंड ऑफ डे 3। सो डे 3 के एंड में प्राइस क्या है हमारी, 90। दैट इज द आंसर टू द थर्ड प्रॉब्लम, right? Now let's move to the final question of this set. What could have been the maximum possible increase in combined cash balance of Chetan and Michael at the end of 5th day? Combined cash balance, अब combined cash balance में चेतन का तो हमें ऑलरेडी पता है ना कि इट हैज टू बी 1300, चेतन का तो वैल्यू चेंज हो नहीं जाएगा, वो तो हमारा कैश बैलेंस उसका 1300 ही होगा इररेस्पेक्टिव ऑफ द केस, बिकॉज आई हैव टू मैक्सिमाइज, सो आई हैव टू मैक्सिमाइज फॉर माइकल, और माइकल का कैश बैलेंस बढ़ाना है, कैश ज्यादा आना चाहिए उसके पास। कैश ज्यादा कब आएगा, जब वो सेल ज्यादा टाइम्स करे। तो तुम थोड़ा सा ध्यान से समझना, माइकल का कंडीशन क्या था, जब भी प्राइस 110 से ऊपर जाएगी तो सेल करना चालू करेगा। तो ऐसा कौन सा सिनेरियो है जिसमें माइकल ने मैक्सिमम टाइम सेल करा है, वही सिनेरियो होगा जिसमें मैक्सिमम टाइम्स तुम्हारा जो डेली प्राइसेस है वो 110 से ऊपर दिखे। सो दैट इज गोइंग टू बी माय फर्स्ट केस इटसेल्फ। उसी में नोटिस करो 3 बार वो सेल करेगा, बिकॉज 3 दिन पे प्राइसेस 110 से ऊपर रहेंगी। तो जब यहां सेल करेगा तो 1200 मिलेगा, 1300 मिलेगा, इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 ना, 10 शेयर सेल होते हैं। तो 120 इंटू 10 1200, 1300 और 1200,
राइट. सो 3700 उसका कैश जनरेट होगा ओवर द 3 days. दैट इज द नेट इंक्रीज इन द कैश बैलेंस ऑफ माइकल. ओवरऑल अगर हम देखें तो वही हमारा आंसर हो जाएगा. तो चेतन प्लस माइकल, there has been an overall increase of rupees 5,000, and that is the answer to the last problem, right? So that is all about this particular set. I hope you have understood this. फिर से ट्राई करो. इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, सिंपल प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. यू हैव टू गेट दीज कंडीशंस इन प्लेस, एंड अगर कंडीशंस बहुत क्लियरली समझ में आ गई देन दिस सेट इज डेफिनेटली डूएबल. Right, so if you have any doubts, you can just put that in the comments. And please remember, 12th is an important date. So please stay tuned. काफी announcements होने वाली हैं. Thank you guys. Bye.